Buddha, the first person to awaken our mind to achieve nirvana. And that state we must have to achieve by forgetting our desires, passions. What we have to accept in our life is that we should be satisfied with whatever we have. और यही जो प्रिंसिपल है उन्होंने हमें बुद्धिज्म में भी सिखाया था और वो थे बुद्धा गौतम बुद्ध और वी कैन कॉल हिम एज सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। बहुत सोच समझकर उनके माँ बाप ने उनका नाम सिद्धार्थ रखा था। सिद्धार्थ द पर्सन हु अचीव हिज गोल्स। उनके जो पिता थे शुद्धोदन, राजा सिद्धोदन, उन्होंने गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ रखा था। द पर्सन हु achieves his goals in his life, that is called as Siddharth. So friends, that person was born on 563 BC, and that actually is not certain, but then also we can count that he was born in 563 BC. Friends, he was born in शाक्य clan. शाक्य clan means शाक्य कुल में उनका जन्म हुआ था। तो उनका जो जन्म हुआ था, he was supposed to be born in Lumbini. Now that place is in Nepal, and he was brought up in Kapilvastu. Kapilvastu is the capital city of Shakya, and that is the reason why he is also called as Shakyamuni. बुद्ध को हम शाक्य मुनि भी बुलाते हैं। उसका एक कारण यह है कि उनका जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था, एंड ही वाज ब्रॉट अप इन कपिलवस्तु, बट दैट कपिलवस्तु इज इन शाक्य। शाक्य में है वो कपिलवस्तु, और वो कैपिटल सिटी है कपिलवस्तु की। तो इसीलिए हम उन्हें शाक्य मुनि भी बुलाते हैं। ये हमें ध्यान में रखना है। तो देखिए, ये जो शाक्य मुनि है या फिर जो बुद्ध है, उन्हें सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ऐसा कहा जाता था। उनके जो पिता थे शुद्धोधन, तो उन्होंने उनका नाम रखा था सिद्धार्थ, और गौतम जो था उनकी फैमिली ने उनका नाम रखा था गौतम। तो बुद्ध जो है द स्टेट ऑफ अवेकनिंग ऐसा कहा जाता है, और स्टेट ऑफ एनलाइटमेंट। सी फ्रेंड्स, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, he as I have told you that his father was Shuddhadan and the mother was Maya Devi. So when he was born at that time, his father had brought a group of 8 Brahmins to predict his future. And these 8 Brahmins or these 8 sages predicted that this person or this child will become the Chakravarti, either the Chakravarti or Buddha. What is Buddha now? Buddha is the person who achieves the state of enlightenment or who awakens the mind, who is fully awakened being, who taught the true path to the cessation of suffering and attainment of liberation. Liberation, that is nirvana. So friends, he is the person. Actually, his father wanted him to become the Chakravarti, and that is the reason why he had done all the preparations, that means mentally. But what had happened? Nobody knows the future, or nobody can decide his own destiny, and that was the thing with Buddha also. Right up to the age of 29, he was confined to his palace. That means his father had a fear, Shuddhodan had a fear in his mind that if he comes out of the palace and if he sees the surrounding atmosphere or the surrounding society, he will be quite unhappy, or he will become sorrowful about the situation of the society, and he might become the sage. That was the thing which was predicted by the sages at the time of his birth, and that is the reason why due to that fear only, he never allowed uh, Siddhartha Gautam Buddha to come out of his palace. But one day what had happened, that
he came out of his palace, and see, the coincidence was that the first few scenes which he had observed, the four truths on which he decided that he will become the sage and preach the sermon of happiness, or the sermon of nirvana to all the people, how to achieve nirvana. That was decided by him. Those are the four truths that I shall predict here now, which had been predicted in Buddhism by Buddha himself. His first encounter, or the first thing which he uh, observed, that was an old man. The second was a sick man, and then a dead body which was passing by him, that was the corpus of the person, या फिर एक अंत यात्रा जो निकल रही थी एक पर्सन की, तो वो भी उन्होंने देख ली थी. एंड फ्रॉम these थ्री encounters, Siddharth began to understand the nature of suffering in world. One or the other day, he has to become old, and in old age, we have to face the sickness, and one or the other day, we have to pass away. So, these are the three things which he observed, and due to these three truths in our life, we face dukkha, or sorrow, unhappiness. And one or the other day, what we have to do? We have to pass away from this world. So he had observed one more thing, that was the holy man who was preaching about the peace and content to the world, how to live with peacefulness and with a content mind in the world. So he thought that this person is the only person who is content with his whatever, with whatever he has, and that is the reason why he uh, made up his mind to become the sermon, or the person who preaches. So these encounters had a profound impact on Siddharth, and through these three sides, Siddharth came to understand that despite the luxury of the surroundings, and despite immense wealth and power of the family, he himself and everyone he loved would eventually have to face the sufferings of old age, sickness, and death. And that is the reason why we sometimes feel ourselves very powerless. We are unable to stop all these things, because this is the cycle of the universe, and one or the other day, each and every person must have to face the death. That is the destination of the life. So friends, these are the truths which he understood, which he observed, and these became the turning points in his life, that they become the turning point in his life. So सिद्धार्थ मेड द डिसीजन टू रिनाउंस दिस वर्ल्ड. इस दुनिया को मुझे अब छोड़ के जाना है, इस प्लेस को हमें छोड़ के जाना है. और मैं क्या करूंगा अभी? आई शैल प्रीच टू द होल वर्ल्ड हाउ टू लिव विथ कंटेंटमेंट, एंड हाउ टू लिव सेटिस्फैक्टरीली विथ हैप्पीनेस, विथ वॉट एवर मीन्स वी हैव. अपने पास जो कुछ भी है, मैंने अपने पहले भी कुछ वीडियोस में कहा था कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है. अगर ये बात लेके हम जिए तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है. इसका मतलब है कि वी हैव टू अचीव द स्टेट ऑफ निर्वाण. निर्वाणा मीन्स जहां पर हम पूरी तरह से सुख के साथ, समाधान के साथ अपनी जिंदगी जी सकते हैं. तो ऐसी जिंदगी उन्होंने जीने के लिए हमें बताई है. तो और एक बात हमें यहाँ पे देखनी है कि बुद्धिज्म जो है वो जैनिज्म के जैसे किसी भी बहुत ही
स्ट्रिक्ट रूल्स या फिर स्ट्रिक्ट फिलोसॉफीज फॉलो करने के लिए हमें नहीं बताता है। बुद्धिज्म जैनिज्म से बहुत ही डिफरेंट है और उन्होंने जो मिडिल वे एक्सेप्ट किया है उसी को उसी मिडिल वे को या फिर उसी मिडिल पाथ को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी लाइफ जीनी है। ना ही हमें पूरी तरह से सरमन बनना है और ना ही हमें पूरी तरह से अपनी वर्ल्डली लाइफ जो है उसे क्विट करना है, बल्कि हमें दोनों को एक साथ जीना है। अध्यात्म भी उतना ही करना है और हमारी जो मटेरियल लाइफ है उसे भी हमें उतनी ही अच्छी तरह से जीना है, ऐसा हमें बुद्धिज्म में कहा गया है। राइट एट द एज ऑफ 35 सिद्धार्थ sat in meditation under the बोधि ट्री और पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने अपना मेडिटेशन शुरू किया हुआ था और वहां पे उन्हें एक एनलाइटमेंट हुआ या फिर रिविलेशन हुआ और इसी कारण से उस ट्री को, फिग ट्री को हम बोधि ट्री कहते हैं और वो आज भी बोध गया में स्थित है। हम उसे आज भी देख सकते हैं अगर हम बोध गया जाए तो यहाँ पे at the age of 35 he had started his meditation under the peepal tree or fig tree and before achieving his enlightenment he would not to rise from that place. After many days he finally destroyed fetus of his mind and thereby he liberated himself from the cycle of rebirth. So रीबर्थ के जो साइकिल थे उसे उन्होंने खुद को मुक्त कर लिया था और उसके बाद उन्होंने हमें एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया हुआ है। ही वॉज कंसर्न दैट ह्यूमंस वेयर सो ओवर पावर्ड बाय इग्नोरेंस। अविद्या जो जिसे हम कहते हैं, अविद्या है हमारे मन में, ग्रीड है, बहुत ही राग है और हेट्रेड है, द्वेष करते हैं, जेलसी है हमारे मन में एक दूसरे के लिए और इसी के कारण हमारा जीवन जो है पूरा दुखमय हो गया है। एंड ड्यू टू दैट ओनली देयर आर लॉट ऑफ डिफिकल्टीज विच आर रेजिंग इन आवर लाइफ। बहुत ही इग्नोरेंस है, ग्रीड है और हेट्रेड है। सो कहीं ना कहीं हमें ये सब जो है, लोभ जो है छोड़ देना है, द्वेष जो है उसे छोड़ देना है और हमें अवेकन माइंड बनके, एक नॉलेजेबल माइंड बनके हमें जीना है। पूरा ज्ञान हमें हमारे लाइफ में अचीव करना है और उसके साथ जीना है। तो ये बहुत ही अच्छा और सुंदर मैसेज उन्होंने हमें यहाँ पे दिया हुआ है। बुद्ध के कुछ टीचिंग्स हैं जो हमें यहाँ पे देखनी है। मैंने आपको कहा था कि उन्होंने कुछ इन हिज लाइफ बुद्धा gave 8 principles to follow as his noble eightfold paths। 8 जो है उन्होंने हमें ज्ञान देने वाले मार्ग बताए हुए हैं और वो जो 8 प्रिंसिपल्स है हमें हमारी लाइफ में फॉलो करने हैं। तो वो कौन कौन से हैं हम देखते हैं। दे वेर द राइट विजन, सम्यक दृष्टि, यहाँ पे हम जिसे कह सकते हैं राइट एम्स, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट्स, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट मेडिटेशन। तो फ्रेंड्स, उन्होंने हमें अपने कुछ जो है 8 प्रिंसिपल्स विच विल एनलाइटन आवर लाइफ, वो हमें यहाँ पे बताए हुए हैं। और देखिए मैंने जो आपको कहा था कि 4 encounters he had या फिर 4 truths of life, that was the aged man he had observed, a sick man he had observed, the dead man he had observed, and a sage also who was meditating he had observed। तो इन सभी से अगर हमें बाहर आना है और निर्वाणा की अवस्था तक पहुंचना है तो हमें क्या करना है। हमें जो 8 फोल्ड पाथ्स उन्होंने बताए हैं, 8 जो मार्ग उन्होंने हमें बताए हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक भाषा, हमारे जो प्रयत्न है वो सम्यक होने चाहिए। तो हमारी जो बातें हैं वो भी सम्यक होनी चाहिए। ऐसे कुछ उन्होंने
8 फोल्ड पाथ्स या फिर 8 मार्ग हमें बताए हैं, और अगर हम उन पे चले विदाउट एनी ग्रीड, विदाउट एनी डिजायर, विदाउट सेल्फिशनेस, तो हम हमारे दुखों को पीछे छोड़ सकते हैं। ऐसा ज्ञान उन्होंने हमें यहाँ पे दिया हुआ है। और मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि जैनिज्म की तरह कोई स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करने के लिए हमें बुद्धिज्म नहीं बताता है, बल्कि ही हैड प्रीच्ड द मिडल वे ऑफ डिटैचमेंट फ्रॉम सेंस ऑब्जेक्ट्स एंड रिनंसिएशन ऑफ इग्नोरेंस। जो मध्य मार्ग है हमें वो स्वीकारना है, ना ही हमें कोई बहुत ही ज्यादा कठिन मेडिटेशन करके एक संत बनना है, और ना ही हमें पूरी तरह मटेरियलिस्टिक लाइफ बितानी है, बल्कि हमें एक अच्छी लाइफ बितानी है जिसमें हम मध्य स्वर्ण मध्य साध सके। और वो है हमें एक मटेरियलिस्टिक भी लाइफ जीनी है और आध्यात्मिक लाइफ भी जीनी है उसी प्रकार से। तो यहाँ पे उन्होंने हमें बताया हुआ है। आई हैव प्रोवाइडेड हियर वन इमेज ऑफ Bodhi tree under which he had the awakening or enlightenment, where he sat for the meditation. See, it is situated in Bodh Gaya. पीपल वृक्ष जो है उसके नीचे बैठकर उन्होंने मेडिटेशन किया हुआ था, और वो बोध गया में स्थित है, और इसी कारण उस वृक्ष को, पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाता है, और गया को बोध गया कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ उन्होंने हमें सिर्फ इंडिया में ही नहीं, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ही नहीं, बल्कि पूरे वर्ल्ड में उन्होंने अपनी बुद्धिज्म का प्रचार किया हुआ था। और उस टाइम में बुद्धिज्म बहुत ही पॉपुलर भी हो गया था। आफ्टर ब्राह्मणिज्म, बुद्धिज्म हैड बिकम वेरी पॉपुलर। तो यहाँ पे मैंने एक इमेज प्रोवाइड की हुई है, और वो इमेज है जातक टेल्स या फिर जातक कथाएं जो है, उनके ऊपर मैंने एक इमेज यहाँ पे आपको प्रोवाइड की हुई है। तो ये जातक टेल्स क्या है, इसके बारे में हम जान लेंगे यहाँ पे पहले। तो जातक टेल्स हम किसे कहते हैं, तो देखिए दोस्तों, जातक कथाएं क्या है। जातक कथाएं दूसरा और कुछ नहीं, बल्कि these are the stories about the birth related to Buddha. That means birth stories of Buddha. These are the voluminous body of literature native to the Indian subcontinent, which mainly concern the previous births of Gautam Buddha. गौतम बुद्धा के कुछ जो जन्म थे, तो उनके पहले के कुछ जन्मों की कथाएं यहाँ पे जातक कथाओं में सुनाई गई है हमें। जातक स्टोरीज वेर डिपिक्टेड ऑन द रेलिंग्स एंड तोरन्स ऑफ स्तूपास which were situated in सारनाथ। सारनाथ, सो फ्रेंड्स देखिए, अगर हम सारनाथ में जाते हैं तो वहां पे हमें कुछ स्तूप देखने को मिलते हैं, और वहां पे ये जो जातक कथाएं हैं वो कार्व की हुई है या फिर डिस्प्ले की हुई हमें दिखाई देती है। एंड सम ऑफ दिस टेक्स्ट आर आल्सो कंसिडर्ड एज ग्रेट वर्क्स ऑफ लिटरेचर। यहाँ पे बहुत ही अलग अलग किस्म की मोर देन 136 जातक कथाएं हमें, जो गौतम बुद्ध है उनके जन्म के बारे में, या फिर उनके लिए हुए रूपों के बारे में बताई हुई है। तो यहाँ पे उन्हें बुद्ध सत्व या फिर बोधिसत्व ऐसा भी कहा जाता है। तो बुद्धहुड एक आइडिया जो सामने आई हुई है, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं। All these Jatak stories or Jatak tales are the collections which have played an important role in the formation and communication of ideas about Buddhahood, karma and merit, and the place of Buddha in relation to the other Buddhas and Bodhisattvas. तो यहाँ पे according to the traditional view, in the Pali Jatak Nidhan, देयर वॉज अ स्टोरी दैट गौतम मेड उन्होंने एक शपथ ली थी दैट ही विल बिकम बुद्ध इन फ्यूचर इन फ्रंट ऑफ द पास्ट बुद्धा दीपक दीपंकार
and he then spent many lifetimes on the path of Buddhahood, and stories from these lives are recorded as जातक कथाएं या फिर जातक टेल्स हमें हम कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस उनकी प्रोवाइड की हुई है, और एक जो कथा है बहुत ही रोमांचक है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे वो जातक कथा जो वैसे तो उनकी बहुत सारी 136 कथाएं हैं जातक की या फिर उनके लाइफ की, लेकिन यहाँ पे एक जो है मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। गंगा के किनारे इस जातक कथा का जो टाइटल है वो है चांद पर खरगोश। खरगोश, चांद पर खरगोश। गंगा के किनारे एक वन में एक खरगोश रहता था, और वो जो खरगोश है अ, उसके 3 मित्र थे, बंदर, सियार और ऊदबिलाव। चारों ही मित्र दानवीर बनना चाहते थे, और एक दिन बातचीत के क्रम में उन्होंने अ, अ, परम दान का निर्णय लिया था, क्योंकि उस दिन के दान का संपूर्ण फल प्राप्त होता है, और इसीलिए उन्होंने ऐसा तय कर लिया था कि इस दिन हम दान करेंगे। तो वो जो है वो दिन था उपोसत बौद्धों का धार्मिक महोत्सव था, और उसी दिन वो यहाँ पे दान करने वाले थे। तो उस दिन क्या हुआ, सुबह सवेरे सारे ये 3 जो मित्र थे भोजन की तलाश में अपने अपने घरों से बाहर निकले। घूमते हुए ऊदबिलाव की नजर जब गंगा तट पर रखी 7 लोहित मछलियों पर पड़ी, तो वो उन्हें अपने घर ले आया। उसी समय सियार भी कहीं से दही की एक हांडी और मांस का एक टुकड़ा चुरा चुरा कर अपने घर लौट आया, और उछलता कूदता बंदर भी बाग के पके आम का कुछ गुच्छा तोड़कर लेके आया था। तीनों मित्रों ने उन्हीं वस्तुओं को दान में देने का संकल्प किया जो वो लोग लेके आए थे। तो उनका चौथा मित्र खरगोश था। वो भी कोई साधारण प्राणी नहीं था। उसने सोचा कि यदि वह अपने भोजन अर्थात अपने घास पात का दान करे, तो दान पाने वाले को शायद कुछ लाभ होगा। तो अ, उस दिन अ, उस दिन के इस अवसर पर उन्होंने अपने याचकों को संतुष्टि प्रदान करने का उद्देश्य अपने मन में रख लिया था, और अ, खुद के लिए वो पूरा दिन त्याग करने वाले थे। जो कुछ भी उन्होंने लाया था, फिश हो या फिर जो दही है वो दही, या फिर जो मरकट ने जो लाया था आम का गुच्छा, तो वो सब वो आज दान करने वाले थे। वैदिक परंपरा में जो एक शुक्र या इंद्र कहते हैं, शक ने जब इस अति अलौकिक घटना का कारण जाना, तो सन्यासी के रूप में वह उन चारों मित्रों की दान पारायणता की परीक्षा लेने स्वयं वहां पे पहुंच गए थे। और अब ऊदबिलाव और सियार और बंदर ने सबको अपने घरों में मछलियां, मांस और दही एवं आम के गुच्छे दान देना चाहा, किंतु जो संत था उसने उनके द्वारा दी गई दान को वस्तुओं में ग्रहण नहीं किया। फिर वो खरगोश के पास पहुंचा और दान की याचना की। खरगोश ने दान के उपयुक्त अवसर को जानकर उसने अब जो संपूर्ण शरीर के मांस को अंगीठी में सेक कर देने का प्रस्ताव रखा। जब अंगीठी जलाई तो उसने 3 बार अपने रोमों को झटका, ताकि उसके रोमों से बसे छोटे जीव आग में न जल जाए। फिर वह बड़ी शालीनता के साथ जलती आग में कूद पड़ा, और जो संत था उसकी दानवीरता पर स्तब्ध हो उठे, और चिरकाल तक उसने ऐसी दानवीरता न देखी थी और ना ही सुनी थी। तो आश्चर्य हो गया उन्हें बहुत ही कि ये खरगोश कितना त्याग कर सकता है। तो आग ने खरगोश को नहीं जलाया, क्योंकि वो जादुई थी जो संत ने निर्माण की हुई थी, और सम्मोहित संत ने तब खरगोश को प्रशस्ति गान दिया, और चांद के ही एक पर्वत को अपने हाथों में मसल चांद पर खरगोश का निशान बना दिया, और कहा, जब तक इस चांद पर खरगोश का निशान रहेगा तब तक हे खरगोश जगत तुम्हारी दानवीरता को याद करेगा। तो एक इस प्रकार से एक जो है
यहाँ पे जातक कथा भगवान बुद्ध के जन्म के बारे में, या फिर ये जो अब खरगोश है यहाँ पर दूसरा तीसरा कोई नहीं है, बल्कि ये बुद्ध ही है, ये हमें जान लेना चाहिए। तो बहुत ही सुंदर कथाएं हैं जातक की, अगर आप पढ़ सके तो कहीं पर भी अवेलेबल हो जाती है। धर्मवीर कौसम्बी ने जी भी जो है धर्मराज कौसम्बी, उन्होंने भी ये जातक कथाएं ट्रांसलेट की हुई है, तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन भी बहुत सी किताबें आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये जो है बुद्धिज्म पर एक मेरा छोटा सा वीडियो था। आशा करती हूँ कि आपको अ, बुद्ध के लाइफ के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी यहाँ पे मिली हुई है। उसी के साथ जो उन्होंने फोर ट्रुथ्स कहे थे और जो एट फोल्ड पाथ्स हमें बताए हैं, उनके बारे में भी आप बहुत अच्छी तरह से आपको नॉलेज मिल गया होगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर watching this video. Thank you very much. Please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.